Good morning, class 12th. Today we'll start 4th chapter, and that is planning. In exams, almost 4 to 8 marks questions are asked from this chapter. Planning क्या है? Planning can be defined as thinking in advance. घर में मेहमान आने वाले हैं तो पहले से सोच कर रखना होगा कि क्या खाना बनाएंगे, ठीक है, मॉर्निंग में क्या बनाएंगे, ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे, बाकी और चीज़ें कि कौन कहाँ सोएगा, ओके, वो लोग जब तक जाएंगे तब उतने दिनों का शेड्यूल पूरा डिसाइड करेंगे. सो व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom it should be done is called planning. Very simple. Okay, but plans are always made for a particular time period. कोई भी प्लान ऐसा नहीं होता कि endless टाइम के लिए होता है. So one important thing which should keep in mind regarding planning, that plans are always developed for a fixed time period, as no business can go on planning endlessly. Now let us see one definition by Kunjo O'Donnell. Planning is deciding in advance what to do, how to do, and by whom to do. Simple. What to do, how to do, and by whom to do. One more important thing, planning bridges the gap between where we are standing, हम कहाँ हैं, and where we want to reach, हमें कहाँ पहुँचना है. ओके, हम अभी कहाँ हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं. प्लानिंग उसको, उसके गैप को फिल करता है, उस गैप के लिए एक ब्रिज का काम करता है. ओके, that you can see here in this picture. Planning is like a gap, is like a bridge which fills the gap where you are and where you want to go, what your present position is and what situation will be there after planning. Okay, where you will reach, so what will be the future situation. This is called planning. Now let us discuss some features of planning. First, its acronym is DCP of MP. DCP जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कह सकते हैं, तो MP का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस. ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं DCP ऑफ MP. एंड D stands for decision making, C stands for continuous process, P stands for pervasive, O stands for objectives achievement, F stands for futuristic or forward looking, M stands for mental exercise, and P stands for primary function. So there are 7 features of planning. Now let us discuss one by one. Now in detail. First is planning involves decision making. प्लानिंग में डिसाइड करने का, डिसीजन मेकिंग का ही सबसे पहला काम होता है. प्लानिंग मीन्स डिसाइड करना कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, बिकॉज यू हैव मेनी ऑप्शंस बिफोर यू एंड यू वांट टू गो विथ whom, by whom, okay, how will do and what you will do. So planning is needed only when different alternatives are available and we have to select most suitable alternative. अगर वहाँ पे बहुत सारे alternatives नहीं हैं तो फिर planning की ज़रूरत ही नहीं है. If there is only one alternative available then there is no requirement of planning. यहाँ पे planning की कोई requirement ही नहीं है ना. फिर तो आपको बस फिर ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग का काम ही नहीं है. जो है आपको वही सेलेक्ट करना है और उसी रास्ते से जाना चाहिए. ऐसे आपको कहीं जाना है और आप उसका केवल एक ही रास्ता है, तो आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई शॉर्टकट ले लें या कोई दूसरा रास्ता ले लें. ओके, सेकेंड फीचर ऑफ प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि एक बार प्लानिंग कर ली और उसके बाद ख़त्म हो गई. प्लानिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है. Planning is a never-ending process because one has to be in touch with the changes in the changing environment. जो भी environment में changes हो रहे हैं, क्योंकि environment क्या है, dynamic है, ये हमने, है ना, हम शुरू से पढ़ रहे हैं. So planning also is continuous because management is continuous. तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, तो वो तो कंटिन्यूस होना ही है और मैनेजमेंट के सारे फंक्शन कंटिन्यूस होने हैं, है ना. तो प्लानिंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस बिकॉज वन हैज़ टू बी इन टच विद द चेंजेस. और अगर चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं किया तो क्या होगा, दैट इट विल फेल.
the organization will fail. There will be chances to fail that organization. So planning is a continuous process, never ending process. Third is planning is pervasive. Pervasive मतलब everywhere. So it is needed in all types of organization. pervasive का यहाँ पे दो मीनिंग है, एक तो कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग रिक्वायर्ड है, और एक हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में भी 3 लेवल्स होते हैं, तो उन हर लेवल्स पे भी प्लानिंग रिक्वायर्ड है. ओके, सो इट इज़ in all types of organization, it is needed in all types of organization, wherever big or small, profit or non-profit, social, political or religious. Being pervasive has one more meaning, that planning is required at all levels of management, means top level, middle level and bottom level of management. Okay, now let us come on to the next feature, that planning focuses on achieving objectives, because objectives पे ही सारा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है. ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही सारे रिसोर्सेज असेंबल किए गए हैं. तो मैनेजमेंट का काम ऑब्जेक्टिव्स को ही फुलफिल करना है. तो जो फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग का, वो भी ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट पे ही फोकस करता है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप टू अचीव predetermined goals. We cannot think of planning in advance of objectives. Hence, planning is purposeful. Okay, always there is purpose for planning. और उसका पर्पस क्या होता है? To achieve objectives. Now, next feature of planning is that planning is futuristic or forward looking. Planning जो है forward looking है, फ्यूचर में देखने की एक स्टेप है, फ्यूचर में देखने का एक फंक्शन है. बिकॉज लुक इनटू फ्यूचर, एनालाइज द फ्यूचर एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर. पास्ट में क्या हो गया उसके लिए प्लानिंग नहीं कर सकते, बट अब फ्यूचर में क्या होने वाला है उनको और उसकी रिस्क्स को पहले से अज्यूम करके उनको मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं. ठीक है, आज आपने गाड़ी परचेज़ की है, उसमें फ्यूचर में एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, आप यही सोचकर इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं. ओके, सो एनालाइज करते हैं रिस्क को और उसके बाद उसको प्रिडिक्ट करते हैं, उस अकॉर्डिंग आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं. सो प्लानिंग इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग. नाउ नेक्स्ट इज planning is a mental exercise which requires higher thinking and higher level of intelligence. So it is also called an intellectual process. ये mental process है, intellectual process है, क्योंकि ये केवल सोचने का काम है. अभी तक केवल सोचा ही जा रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेगा. ठीक है, so that is why it is kept separate from operational activities by Taylor. और इसको जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग, एक हमारा पॉइंट था कि प्लानिंग इज़ परवेसिव एंड प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स. सो इट डजंट मीन दैट मिडल लेवल और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट दे डोंट इन्वॉल्व इन प्लानिंग. वो अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं. जैसे मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग से प्लानिंग को देखेगा, और बाकी जो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स हैं तो वो एम्प्लॉयज़ से कैसे डील करना है, डे टू डे फंक्शंस को कैसे पूरा करवाना है, वो उससे रिलेटेड प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, बट फिर भी प्लानिंग जो है एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि क्या करना है इसको सोचा पहले जाता है. एंड लास्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट performing planning function, because objectives are set up in planning and other functions depend on the objectives only. objectives जो हैं वही तो डिसाइड किए जाते हैं प्लानिंग में. जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वही तो सेट किए जाते हैं कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा. एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट कितना होगा पूरे साल का कि प्रोडक्शन को 10,000 यूनिट्स से 20,000 यूनिट्स तक ले जाना, तो
उसके लिए प्लानिंग की जाएगी. तो प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, that we will cover in next video. Okay, till then, goodbye, thank you.